بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ملک عراق کے شہر بغداد میں ایک اندھا اور ایک کبڑا فقیر بھیک مانگا کرتے تھے۔ ایک دن دونوں بھیک مانگنے کے لیے اپنے اپنے گھر سے نکلے تو ایک چوراہے پر ان کی ملاقات ہو گئی۔ اندھے فقیر نے صدا لگائی، خدا کے نام پر کچھ اس اندھے کو دیتے جاؤ۔ دوسری طرف کبڑے فقیر نے بھی صدا لگائی کہ ساتھ ساتھ اس کبڑے پر بھی مہربانی کرتے جاؤ۔ اندھے فقیر نے جب اپنے ساتھ والے شخص کی آواز کو سنا تو اپنی موٹی لاٹھی کو زور سے زمین پر مارتے ہوئے کہا، کون ہو بھائی تم؟ کیوں میری روزی روٹی پر لات مارنے آگے ہو؟ تم جاؤ کہیں اور جا کر بھیک مانگو، یہ جگہ میری ہے اور میں اس جگہ پر سالوں سے بھیک مانگتا آ رہا ہوں۔ کبڑے نے جواب دیا، یہ ساری دنیا خدا نے سب کے لیے بنائی ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے یہاں سے بھیجنے والے؟ جو مجھے ملا وہ میرا نصیب اور جو تمہیں ملا وہ تمہارا۔ اندھے کو کبڑے کی بات بڑی معقول لگی۔ اندھے نے پوچھا، کیا تم پیدائشی کبڑے ہو یا کسی حادثے نے بنا دیا؟ کبڑا تھا تو پیدائشی کبڑا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس اندھے پر تھوڑا روب ڈالا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سچ مچ مجھے یہاں سے بھیج دے۔ اس لیے اس نے جٹ سے ایک کہانی گڑھ لی اور کہا، بھائی اندھے، میری کہانی بڑی ہی دردناک ہے، مگر پھر بھی میں تمہیں اپنے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ میں پیدائشی کبڑا نہیں ہوں، میں ایک لوہار کے گھر پیدا ہوا تھا۔ جس دن میں پیدا ہوا اس دن ایک بزرگ نے میرے باپ سے کہا کہ تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بڑی برکت لائے گا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا۔ جب تک یہ صحت مند رہے گا اور سر اٹھا کر چلتا رہے گا تو اس کی برکت سے تمہارے آگے پیچھے دولت کی ریل پیل ہوگی۔ اسی دن میرے باپ کو ایک بہت بڑے تاجر کی طرف سے ایک پیغام ملا جس میں میرے باپ کو ایک بہت بڑی مالیت کا سامان بنانے کی پیشکش کی گئی۔ اس میں بغداد کی فوج کے لیے ذرہ، تیر، تلواریں اور بہت سارا جنگی ساز و سامان شامل تھا۔ مزدور اور خام لوہا بھی میرے باپ کو اس تاجر نے مہیا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے باپ کا سوائے اس کے کوئی کام نہیں تھا کہ مال کو بنوانے کے بعد وہ اپنی نگرانی میں اسے باحفاظت اس تاجر تک پہنچاتا۔ چنانچہ میرے باپ نے کام کرنا شروع کیا۔ دن گزرتے گئے اور دولت کی جیسے بارش ہونے لگی۔ ہمارا شمار اب بغداد کے چند امیر خاندانوں میں ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ میں بھی جوانی کی عمر کو پہنچ گیا۔ میرا باپ میرا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ ساری دولت میری ہی برکت کی بدولت ہے، لہٰذا وہ مجھے گھر سے باہر نہ نکلنے دیتا۔ کچھ ہی عرصے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد تو میرے باپ نے میرا اور بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ایک روز جب میرا باپ سامان تیار کروا کر اس تاجر کو پہنچانے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو میں نے ضد پکڑ لی کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ میرے بے حد اصرار کرنے پر میرا باپ راضی ہو گیا اور چند ایک سپاہیوں کو لے کر میرے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم سب بڑی بہادری سے ان سے لڑے، مگر ان ڈاکوؤں کی تعداد ہم سے زیادہ تھی، لہٰذا ہمیں شکست ہو گئی۔ میرے باپ کا اس لڑائی میں انتقال ہو گیا اور سپاہی بھی مارے گئے، مگر میں وہاں بے ہوش پڑا رہا۔ شاید ڈاکوؤں نے مجھے مردہ سمجھ لیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامنے ایک بزرگ فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ دراصل اسی نے میری جان بچائی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور اس چلنے پھرنے میں ایک نمایاں تبدیلی تھی۔ اس لڑائی نے مجھے کچھ ایسے زخم دیے کہ میری کمر جھک گئی اور میں کبڑا ہو گیا۔ میں اب روزانہ اس بوڑھے فقیر کے ساتھ مانگنے چلا جاتا۔ شروع میں بہت شرم محسوس ہوئی، مگر پھر آہستہ آہستہ یہ شرم بھی جاتی رہی۔ بزرگ نے شاید ٹھیک ہی کہا تھا کہ جب تک میں تندرست رہا تب تک میں دولت مند رہوں گا، مگر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ میں امیر سے فقیر ہو گیا۔ چنانچہ میں اسی فقیر کی جھونپڑی میں رہنے لگا، سارا دن اس کے ساتھ بھیک مانگتا اور اس نے مجھے بھیک مانگنے کے نت نئے طریقے بھی سکھائے۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ بوڑھا فقیر بھی چل بسا اور اب صرف میں تھا اور میری فقیری تھی۔ ان ڈاکوؤں نے میرا باپ اور میری قسمت دونوں کو مجھ سے چھین لیا۔ کبڑا اپنی جھوٹی کہانی سناتے سناتے زار و قطار رونے لگا۔ اندھے نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر اسے حوصلہ دیا۔ اس کے بعد کبڑے نے اندھے سے پوچھا، بھائی میں نے تو اپنی آپ بیتی سنا دی، اب تم بتاؤ کیا تم پیدائشی اندھے ہو یا تمہیں بھی کوئی حادثہ پیش آیا تھا؟ اندھا بھی ایک پیدائشی اندھا تھا، مگر اس نے بھی سوچا کہ اگر میں نے اسے بتا دیا کہ میں پیدائشی اندھا ہوں
और सिरे से ही भूखा नंगा हूँ तो शायद ये मुझे दबा ले। इसे कोई ऐसी कहानी सुनानी पड़ेगी कि ये मेरे नीचे दब कर रहे। उसने झट से जवाब दिया, नहीं, मैं पैदाइशी अंधा नहीं हूँ। ये कहते हुए उसने अपना मुंह थोड़ा सा अफसुर्दा कर लिया। कुबड़े ने पूछा, तो भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारा दुख बांट सकूं। अगर तुम इसरार करते हो तो चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना देता हूँ। दरअसल मैं एक अमीर ताजिर का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। मेरे बाप के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरा बाप शायद बगदाद का सबसे अमीर ताजिर था, इतना अमीर कि खलीफा भी मेरे बाप के पास आते जाते रहते थे। बड़े बड़े लोग मेरे बाप के लिए सामान लाते थे। जो भी ताजिर मेरे बाप के साथ काम करता था उसकी किस्मत बदल जाया करती थी। हर ताजिर की ये ख्वाहिश होती थी कि वो मेरे बाप के साथ काम करे, मगर मेरा बाप हमेशा गरीब ताजिरों की ही किस्मत बदला करता था। इसी वजह से दूसरे बड़े ताजिर मेरे बाप से हसद किया करते थे। जब मैं जवान हुआ तो मेरे बाप ने मुझे भी तिजारत सिखाई। चुनाचे मैं भी अपने बाप के साथ तिजारत में अपनी महारत दिखाने लगा। चूंकि मेरा बाप अमीर ताजिरों को छोड़कर गरीब ताजिरों से अपना सामान तैयार करवाता था, एक दिन मेरे बाप ने मुझे बताया कि बेटा, मैं काफी अरसे से एक ताजिर से अपना सामान बनवा रहा हूँ। वो ताजिर बड़ा ही भूखा नंगा था, मगर आजकल वो बड़ा अमीर हो चुका है। मैं ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि आज से इस ताजिर से तुम ही मेरे साथ सामान वसूल किया करोगे। मुझे यकीन है कि तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम इस काम को अच्छे से संभालोगे। मैंने इस ताजिर को भी मशवरा दिया था कि अपने बेटे को भी इस काम पर लगाओ, मगर वो ना माना और इसने कहा कि मेरा बेटा घर में ही खुश है। शायद उसका बेटा इंतहाई कामचोर था। ये कहकर मेरा बाप खामोश हो गया। मैंने पूछा, अब्बा जान, तिजारत कौन से सामान की है? मेरे बाप ने जवाब दिया, जंगी सामान की है बेटा, और ताजिर एक लुहार है, अंधा फकीर। ये कहते हुए एक बेईमान हंसी हंसा। कुबड़ा फकीर दांत बींचते हुए बोला, अच्छा तो आगे क्या हुआ था? आगे ये हुआ कि एक दिन मेरे बाप ने कहा कि बेटा तैयारी करो, हम लोहार से सामान लेने जा रहे हैं। हमने अशरफियों का थैला उठाया और घोड़ों पर निकल पड़े, और जब हम सामान वसूल करने वाली जगह पर पहुँचे तो देखा कि लोहार के काफिले पर हमला हुआ है और सारा माल बिखरा पड़ा है। कुछ ही देर बाद कोई 20 से 25 लोग, जिसमें से कुछ अमीर ताजिर मेरे बाप से हसद करते थे, हाथों में तलवारें उठाए हम पर हमला आवर हुए। उन्होंने मेरे बाप को कत्ल कर दिया और मुझे मुर्दा समझकर वहां से चले गए। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं अंधा हो चुका हूँ। तब से लेकर आज तक मैं भीख मांग रहा हूँ। मेरे ख्याल से जिस लोहार के साथ मेरे बाप ने तिजारत की थी वो तुम्हारा ही बाप था। अगर उस दिन हमारी मुलाकात हो जाती तो अमीरों की तरह मिलते, मगर कुदरत ने हमें किस हाल में मिलाया। एक कुबड़ा है और दूसरा अंधा। कुबड़े ने अंधे की कहानी सुनकर दिल ही दिल में सोचा कि ये अंधा तो बड़ा ही चालाक निकला। जब मेरे बाप का कोई कारोबार ही नहीं था तो तेरा बाप कैसे मेरे बाप से कारोबार करने लगा? ये सोचते हुए कुबड़े ने जवाब दिया, भाई अंधे, अगर हमें किस्मत ने मिला ही दिया है तो क्यों ना हालात का इकट्ठे मिलकर मुकाबला किया जाए। अंधे ने जवाब दिया, ठीक है, आज से हम दोस्त हैं और अपने दुश्मनों से बदला लेंगे। उस दिन के बाद से दोनों इस चौराहे पर भीख मांगने लगे और दोनों को जितने भी पैसे मिलते वो आपस में बांट लेते। लोगों ने देखा कि पहले तो इस चौराहे पर सिर्फ एक भिखारी था, अब 2 हो गए हैं, कल को शायद 3 हो जाएं और फिर बेशुमार। चुनाचे देने वालों ने भीख बहुत कम कर दी। कुबड़े की ये जिम्मेदारी होती थी कि जो भी भीख मिलती वो उसे बराबर तकसीम करके आधी अंधे को दे देता और आधी खुद रख लेता। एक दिन भीख मांगने के बाद वो आपस में बांट रहे थे। कुबड़े ने गिनकर आधे अपने पास पैसे रख लिए और आधे अंधे के कटोरे में डाल दिए, मगर साथ ही उसे महसूस हुआ कि अंधे के पास कुछ पैसे कम हैं। चुनाचे उसने कुछ मजीद सिक्के इसके कटोरे में डाल दिए। जब सिक्कों की छनकार अंधे के कानों में पड़ी तो उसने सोचा कि सारे पैसे तो तकसीम हो गए हैं, फिर ये सिक्कों की छनकार कैसी? जरूर कुबड़ा कोई हेर फेर कर रहा है। चुनाचे उसने चिल्लाकर कुबड़े से कहा, क्यों बे, क्या हेरा फेरी कर रहा है? इतना कहकर उसने अपनी लाठी उठाई और जबरदस्त तरीके से कुबड़े को दे मारी, जो इत्तेफाक से सीधी उसकी कमर पर पड़ी। कुबड़े को भी शदीद गुस्सा आ गया।
और उसने गुस्से में आकर अपनी मुट्ठी में रेत भरी और अंधे की आंखों में झोंक दी। जैसे ही उसकी आंखों में रेत गई, अंधे की चीख निकल गई, मगर दूसरे ही लम्हे अचानक अंधा चिल्लाया, अरे यार, मुझे नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कुबड़े ने भी चिल्ला कर कहा, अरे यार, मेरी कमर सीधी हो गई है। और दोनों मारे खुशी से एक दूसरे से लिपट गए। अंधे ने कुबड़े से कहा, यार मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर यूं ही शक किया था। कुबड़ा अब कुबड़ा नहीं था और अंधा अब अंधा नहीं था। अब उनके सामने एक और मसला था कि अब वो बिल्कुल ठीक थे। ऐसी सूरत हाल में भीख का मिलना मुश्किल था। कुबड़े ने अंधे से कहा कि यार, अब तुम ही कुछ सोचो, ऐसा कोई काम हो जिसमें कोई काम ना करना पड़े मगर पैसे खूब मिले। अचानक अंधे के जहन में एक तरकीब आई। अंधा बोला, हम दोनों हकीम बनकर इलाज किया करेंगे। कुबड़ा बोला, मगर वो कैसे? मुझे तो हिकमत की अलिफ बे तक नहीं आती। अंधे ने जवाब दिया, भाई देखो, हम दोनों के हाथों में शिफा है। क्या तुमने मेरी आंखें ठीक नहीं की और मैंने तुम्हारी कमर? कुबड़ा बोला, अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कुबड़े और अंधे का इलाज ऐसे भी हो सकता है। चलो किसी नजदीकी गांव में चलते हैं, तुम कुबड़ों का इलाज करना और मैं अंधों का करूंगा। अंधे ने अपनी लाठी उठाई, कुबड़े ने कुछ रेत अपने थैले में डाली और सफर पर निकल खड़े हुए। कुछ ही देर में वो एक गांव में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों को बताया कि वो दोनों पिछले 18-20 साल से हकीम हैं और कुबड़ों और अंधों का इलाज करते हैं। तो देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल गई। कई कुबड़े और अंधे इन दोनों के पास पहुंच गए। हर कोई चाहता था कि पहले उसका इलाज किया जाए। चुनाचे कुबड़े ने एक बूढ़े को जो अंधा था और अंधे ने एक बूढ़े को जो कुबड़ा था अपने पास बुला लिया और बोले, सबसे पहले इनका इलाज होगा। हम वादा करते हैं कि हम सबका इलाज करके जाएंगे। कुबड़े ने इस बूढ़े अंधे से कहा कि बाबा जी जरा आंखें खोलें। जैसे ही बूढ़े ने आंखें खोली, कुबड़े ने झट से अपना हाथ थैले में डाला और मुट्ठी भर कर रेत उसकी आंखों में डाल दी। बूढ़ा दर्द से चिल्ला उठा और वहीं पे ढेर हो गया। दूसरी तरफ अंधे ने बूढ़े कुबड़े की कमर में इस जोर से लाठी मारी कि वो भी दर्द की ताब न ला सका और वहीं पर अपनी जान दे दी। गांव वालों ने जब ये तमाशा देखा तो दोनों नीम हकीमों को मारना पीटना शुरू कर दिया। उसी गांव में से एक रहमदिल आदमी ने कहा, इन्हें जान से मत मारो, इनको ये सजा दो कि इन दोनों से मरने वालों की कब्रें खुदवाओ। चुनाचे दोनों ने कब्रें खोदी और वहाँ से भाग निकले। भागते भागते कुबड़े ने अंधे से पूछा, यार मरीज इलाज के दौरान मर क्यों गए? अंधे ने कहा, शायद मेरा डंडा मरीज की कमर पर नहीं लगा था और तुम्हारी रेत उसकी आंखों की बजाय उसकी नाक में चली गई थी। कुबड़े ने पूछा, अब क्या करें? अंधे ने जवाब दिया, अब अगले गांव में अपनी किस्मत आजमाते हैं, मगर ख्याल रखना इस बार इलाज ध्यान से करना। वो दोनों चलते चलते अगले गांव में पहुंचे। मरीज उनके आगे पीछे जमा हो गए। एक बार फिर कुबड़े ने एक अंधे को अपने पास बुला लिया और अंधे ने एक कुबड़े को। इलाज करने से पहले अंधे ने कहा, भाइयों और बहनों, इसमें कोई शक नहीं कि हम पुराने हकीम हैं और हम इस मर्ज से बाखूबी वाकिफ हैं। हम दोनों इनका इलाज जरूर करेंगे, मगर इलाज के दौरान मरीज डंडा लगते और आंखों में रेत जाने से अगर मर गए तो कब्र की जिम्मेदारी हमारी ना होगी, कब्र तुम लोग खुद ही खोदना। ये सुनना था कि गांव वालों ने दोनों की दुर्गत बनाना शुरू कर दी। एक बार फिर एक नेक बुजुर्ग ने गांव वालों को रोका और कहा, बस करो, नहीं तो ये मर जाएंगे। फिर नेक बुजुर्ग ने अंधे और कुबड़े से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों हकीम नहीं हो, फिर क्यों अपनी और लोगों की जान के दर पर हो गए हो? दोनों ने अपनी कहानी बुजुर्ग को बयान कर दी। नेक बुजुर्ग ने कहा कि देखो, खुदा ने तुम्हें सेहत अता की है, तुम लोगों को अपने हाथ से मेहनत करके रोजी कमानी चाहिए। खुदा ने तुम्हें सेहत दी है, वो वापस भी ले सकता है। इससे पहले कि नाशुक्री में मजीद नुकसान उठा लो, संभल जाओ और मेहनत से रोजी कमाओ। नेक बुजुर्ग की बातें सुनकर अंधा और कुबड़ा बहुत नादिम हुए और नेक बुजुर्ग के कदमों में गिरकर ज़ारो कतार रोने लगे और वादा किया कि आइंदा हमेशा मेहनत करके ही अपना पेट भरेंगे।